My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing some miscellaneous type of questions, some questions from height and distance, and some from other variety, जो कि SRE जीवो एग्जाम में आए हैं. स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल Mathological and can message me on Telegram at ADITYA. So first question. So the question is, two straight parallel lines are cut by a transversal such that the measures of two co-interior angles are 3x by 4 and 5x by 4 minus 20. So what are the values of measures of two angles respectively? ठीक है. अब ये जो एंगल्स हैं हमारे, these two angles are co-interior angles which are 3x by 4 and 5x by 4 minus 20. प्रॉपर्टी क्या होता है co-interior angles का? That they are supplementary. Supplementary. Their sum is equal to 180 degrees. तो खैर सारे ऑप्शंस में आ रहा है. ठीक है. सो सॉल्व करते हैं इसको. बट अगर ये बात क्लियर थी स्टार्ट से ही कि सप्लीमेंट्री है तो डायरेक्टली इक्वेशन में बिठा दोगे वैल्यूज 3x/4 प्लस 5x/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 180. ठीक है. डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं बस, और कुछ इसका पर्पज नहीं है यहाँ पे. 5x/4 माइनस 20, तो सम ऑफ दीज टू दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो 3x प्लस 5x/4 यानी 8x/4 2x माइनस 20 इज 180. तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा इक्वल टू 100 डिग्रीज. And if x is 100, 3x/4 75, 75 105. Option B will be the answer. Okay. Clear है. Next question. The length of major axis is 12 centimeter and that of the minor axis is 2.8 centimeter. So what is the area of the ellipse? अब ellipse के एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में. So ऐसे समझ लो कि एरिया ऑफ ellipse इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी. अब जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल से कंपेयर करोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी. बिकॉज सर्कल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलिप्स. पाई आर स्क्वायर. ओके. बिकॉज इन केस ऑफ सर्कल हमारा अगर हम इलिप्स से कंपेयर करें तो इलिप्स में देयर इज अ मेजर एक्सिस एंड देयर इज अ माइनर एक्सिस. इफ दिस इज द इलिप्स so there are two axes, minor axis and major axis. This is the minor axis and this is the major axis. Okay. And if major axis is 2a, minor axis is 2b, और यही काम कंपेयर करो सर्कल से, दो डायमीटर ड्रॉ करके. So this is also 2r. This is also 2r. So in comparison, basically in a circle both axes are equal. और एलिप्स में इक्वल नहीं होती, तो वन एक्सिस इज माइनर एक्सिस, वन इज मेजर एक्सिस. तो एरिया इज पाई इंटू ए इंटू बी. ठीक है. सिंस टोटल इज 2a, so this will be a. Total is 2b. For minor axis this will be b. तो pi ab is the area of ellipse. तो आंसर will be pi into 22/7 pi into 12 है हमारी मेजर एक्सिस, दिस इज 2a, तो इंटू 6 और इंटू 1.4. 5 टाइम्स आएगा 22 इंटू 6/5 तो 22 इंटू 1.2. 22 plus 4.4 26.4 centimeter square will be our answer. Option C. ठीक है. क्लियर है बात. Okay. Next question. The horizontal distance between two towers is 60 meters. The angular elevation of the top of the taller tower as seen from the top of the shorter one is 30 degrees. If the height of the taller tower is 150 meters, the height of the shorter one क्या होगा? There are two towers and we know the height of taller tower. And distance between them is 60 meters. And angle of elevation of the top of the taller tower is 30 degrees from shorter one. So this is the shorter one. This is the top of the taller tower. So this angle of elevation is 30 degrees. This angle is 30 degrees. और 3690 का ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे अल्टीमेटली. So if one angle is 30 in a right angle triangle, other angle is 60. और रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा? 30 के सामने साइड इज द स्मॉलेस्ट साइड, दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट.
90 के सामने साइड इज लार्जेस्ट साइड 2 यूनिट्स और 60 के सामने साइड इज √3 यूनिट्स, तो रेशियो इज 1:√3:2। ठीक है, सो हमें गिवन क्या है कि हाइट ऑफ द टावर टावर इज 150, दैट इज फाइन, और हमें डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज गिवन, दैट इज 60, तो बेस की वैल्यू गिवन है, बेस इज 60 एंड बेस इज अपोजिट 60 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 60 डिवाइडेड बाई √3, दिस विल बी 60 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि 20√3 and this remaining distance, this will be height of the shorter tower. If that is equal to h, let us say, so h plus 20√3 is the height of taller tower and that is 150. So h is equal to 150 minus 20√3 and √3 is lump sum approximately 1.732. 1.7 मान लेते हैं, तो 20 into 1.7 will be 34, so 150 minus 34 approximately, which is 116 meters. Option B will be the answer. Okay, clear? Next question. At a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. Tangent यानी कि tan theta की वैल्यू गिवन है कि angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent, तो tangent of angle of elevation and tan theta is 5/12 from one point. On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. So initially angle of elevation is 5/12. 5/12 initially. If this angle is theta, so tan theta is equal to 5/12. And after walking 192 meters towards the tower, the new angle alpha, let us say, so tan alpha is equal to 3/4. And हमें चाहिए height of the tower. ठीक है, तो इन फर्स्ट केस हाइट, इफ हाइट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, सेकंड केस में हाइट आ रहा है इक्वल टू 3 यूनिट्स, तो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, तो एज्यूम कर देते हैं अपना वैल्यू 5 into 3 15. ठीक है, लेट अस से हाइट इज इक्वल 15 यूनिट्स. सो इफ हाइट इज इक्वल 15 यूनिट्स, तो फर्स्ट केस में tan थीटा टेंजेंट इज 5/12 और tan थीटा होता क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस. फर्स्ट केस में बेस हमारा क्या है, दिस इज द बेस. सो इफ परपेंडिकुलर इज 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स की वैल्यू 15 है यानी कि 3 टाइम्स है, तो बेस हमारा 12 into 3 36 यूनिट्स होगा. ठीक है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. सो समझाने के लिए बस ए बी बाई बी सी, दिस इज 5/12 और हमने मान लिया इसको 15, तो 15/36 हो जाएगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो 3/4 है, 15/20 हो जाएगा. सो डी बी विल बी इक्वल 20, सी बी इज 36 यूनिट्स, डी बी इज 20, तो सी डी हमारा विल बी इक्वल टू 16, सी डी विल बी 16 यूनिट्स और सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 16 यूनिट्स इज इक्वल टू 192, सो 180 विल बी इक्वल टू 12. So height of the tower will be 15 into 12, 180 meters. Option C will be the answer. अगर चाहो तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो तो 15x मान लो. ठीक है, इन दैट केस x मान लो, 15x हाइट एज्यूम कर लिया. सो इफ हाइट इज 15x बाई बी सी दैट इज इक्वल टू 5/12, तो वहाँ से बी सी विल बी इक्वल टू 36x. सिमिलरली डी बी विल कम आउट टू बी 20x. 16x will be the difference, that is CD. 16x is equal to 182, x comes out to be equal to 12, 15x will be 15 into 12, that is 180. Okay. ठीक है, next question. A man observes that when he moves up distance c meters on a slope, the angle of depression of a point on the horizontal plane from the base of the slope is 30 degrees, and when he moves up a further distance of c meters, the angle of depression of that point is 45 degrees. The angle of inclination of the slope with the horizontal क्या होगा? Now this is a difficult question. ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन. पहले तो इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि एक स्लाइटली अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन है और डायग्राम बनाने में भी गलती हो सकती है. ठीक है, उसके बाद में इसको सॉल्व करोगे तो भी काइंड ऑफ टाइम लेगा. एक चीज़ जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम विद दिस, ठीक है, पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा. डायग्राम बनाए बिना शायद वो ऑब्जर्वेशन करना ही मुश्किल हो. कि एक मैन है, मैन इज ऑब्जर्विंग दैट व्हेन ही मूव्स अप डिस्टेंस c meters ऑन अ स्लोप. ठीक है, सो देयर इज अ स्लोप, लेट अस से दिस इज द स्लोप. सो इन दैट स्लोप a man is moving up a distance c meters on a slope. Let us say this is the point.
where the man has reached. ठीक है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्लोप इज 30 डिग्रीज. तो अब यहाँ से वो देखेगा तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्रीज है. एक पॉइंट है हमारा बेस पे, उसके लिए. ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट है ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्रीज. सिमिलरली अब वो फिर से फर्दर सी मूव अप करेगा. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्रीज. क्या ये पार्ट क्लियर है? अच्छा, अगर इतना समझ पा रहे हो, अगर ये बात समझ पा रहे हो, अब डायग्राम भी बन जाएगा. बट यहाँ पे एक बात और समझ पाओगे कि अगर पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज था, अब है 45 डिग्रीज, तो क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो हमारा स्लोप है, इस स्लोप का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मस्ट बी मोर देन 45. थिंक अबाउट इट. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अगर क्या ये बात समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर समझेंगे इस बात को. ठीक है, सो लेट अस से दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज आवर स्लोप. So first he moves distance c. In that case, angle of depression is 30 degrees. ठीक है, so this angle will be 30. Because जितना हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही सेम हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. ठीक है, सो 30 डिग्रीज एंगल हो गया इन फर्स्ट केस. और दिस डिस्टेंस इज सी. क्वेश्चन पूछा हमसे स्लोप विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि दिस एंगल लेट अस से दिस इज इक्वल टू थीटा. तो क्या ऑब्जर्व करो, थीटा हमारा क्लियरली ग्रेटर देन 30 डिग्रीज हो रहा है. ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल में, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द ट्रायंगल लेट अस से. ठीक है, तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, लेकिन एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल अगर थीटा है, और लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज 180 डिग्रीज, और थीटा प्लस दिस एंगल का सम भी 180 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. और अगर थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, थीटा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अल्फा, हमेशा अल्फा से बड़ा होगा. इजंट इट सो? तो थीटा विल बी ग्रेटर देन 30 डिग्रीज. दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे कि डेफिनेटली ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा. सिमिलरली फिर वो फर्दर सी मीटर्स अप जाता है, एंड नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 45 डिग्रीज. बाय द सेम लॉजिक अब नए ट्रायंगल में थीटा विल बी ग्रेटर देन 45. तो 45 कैन नॉट बी द आंसर इधर, कैन नॉट बी द आंसर. ये भी आंसर नहीं हो सकता. तो आंसर या तो 60 होगा या फिर 75 होगा. इतना तो एटलीस्ट ऑब्जर्व कर पाए कि ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट होगा. बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है. अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको यहाँ से. ठीक है, क्योंकि हमें एंगल चाहिए अल्टीमेटली. सी का वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सी सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी और डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है. तो चाहो तो सी इक्वल टू 1 भी मान सकते हो, बिकॉज सी का वैल्यू इज इररिलेवेंट. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे. सो इन अ ट्रायंगल, if we've been given an angle, let us say that angle is theta, or hypotenuse की value given है, that is equal to c. So in that case, base will be c cos theta, and perpendicular will be c sin theta. Okay, so this length here, this will come out to be c sin theta, and the base will be c cos theta in the छोटू वाला triangle. Now in the larger triangle, this length here, this will be 2c sin theta, and base will be 2c cos theta. Oh sorry, ये 2c cos theta नहीं हुआ, भारी मिस्टेक हो गया. दिस इज नॉट 2c cos theta. दिस इज 2c cos theta. ओके, अब लार्जर ट्रायंगल में 45 डिग्रीज का एंगल है, और 45 डिग्रीज का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्लियरली द परपेंडिकुलर साइड्स आर इक्वल. सो इफ दिस हाइट इज 2c sin theta, तो बेस विल ऑल्सो बी 2c sin theta. दिस विल ऑल्सो बी 2c sin theta. ओके, और अगर ये टोटल 2c cos theta है, दिस पार्ट विल ऑल्सो बी c cos theta, बिकॉज टोटल 2c cos theta है, उसमें c cos theta ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है. सो दिस विल ऑल्सो बी 2c cos theta माइनस c cos theta, यानी c cos theta हो जाएगा.
ठीक है, ये सब कहानी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है अल्टीमेटली, जिससे कि हम एंगल निकाल सकें। ठीक है, अब 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री है सामने वाला साइड, दैट इज सी साइन थीटा। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ दिस, तो √3 सी साइन थीटा। ओके, बेस आ जाएगा हमारा √3 सी साइन थीटा। सो दिस बेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज √3 सी साइन थीटा। अब इक्वेशन बना सकते हैं कि √3 सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी साइन थीटा। √3 सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा। देखो एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इतना टाइम होगा ही नहीं। तो 2c साइन थीटा, दिस विल बी आवर इक्वेशन। अगर एलिमिनेशन हो जाए तो बढ़िया है कि 45 एलिमिनेट हो गया, 30 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर 60 डिग्री वैल्यू पुट करके चीज़ें आसान हो जाएं, कि तुमने वैल्यू पुट किया 60 डिग्री, ट्राई किया थीटा इक्वल टू 60 पे कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर जाए तो मार्क कर दो, अगर नहीं कर रहा है तो फिर जो ऑप्शन बच गया उसको मार्क कर दोगे। बट वहाँ से भी चीज़ें उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि तब भी तुम्हें ये सब वैल्यूज़ तो लिखनी पड़ेंगी ना। ठीक है, तो तब भी टाइम लगेगा। क्लियर है, तो √3 सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा इक्वल टू 2c साइन थीटा। अब फ्रेश पेज पे करते हैं थोड़ा बहुत, इसके बाद सॉल्यूशन प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। √3 सी साइन थीटा इज इक्वल टू 2c साइन थीटा माइनस सी कॉस थीटा। अब देख पा रहे हो कि सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी को रिमूव कर दो, कॉमन आके रिमूव कर दिया हमने। तो √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 2 माइनस √3 टाइम्स साइन थीटा। यहाँ से हमें tan थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस √3। रैशनलाइज कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस √3, सो दिस बिकम्स 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1, डिनोमीटर 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस √3। ओके, और हमें पता है कि tan ऑफ 60 डिग्रीज होता है √3, tan 75 मस्ट बी, क्योंकि उससे लार्जर वैल्यू है, 75 है हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर tan 75 नहीं पता है तो भी हमारा आंसर विल बी tan 75। ओके, क्लियर है। आंसर हमारा 75 डिग्रीज आंसर हो जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सेकेंड मेथड ये हो सकता था कि फ्रॉम दिस स्टेप कॉस थीटा को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, so this becomes √3/2, this becomes 1/2, and this becomes 2/2, which is equal to 1. तो √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये सारे के सारे स्टेप्स तभी कर पाओगे जबकि ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल होगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट एग्जाम में ऐसे जीवी में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसको तुम्हें स्किप करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में समझ गया, शुरू में एलिमिनेट करने से आंसर हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एग्जाम में नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन में। बिकॉज अगर टाइम वेस्ट कर भी दिया तो थोड़े टाइम के बाद में अटक सकते हो, और डेफिनेटली फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई और क्वेश्चन कर सकते हो उस टाइम में। ठीक है, तो √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। नाउ कंपेयर दिस विद साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो नाउ दिस बिकम साइन ऑफ थीटा प्लस 30 डिग्रीज, because √3/2 is cos 30 and 1/2 is sin 30. So sin of theta plus 30 is equal to sin of theta. Now these two sin values are equal. ठीक है, so sin of theta plus 30 equal to sin theta. This happens, अगर ये प्रॉपर्टी पता हो तो, this happens when theta and theta plus 30 are supplementary. Sum is 180 degrees. ओके, जब ये सप्लीमेंट्री होंगे। हाँ ठीक है, थीटा बहुत लार्ज वैल्यू होगा तो उसके लिए भी ये सेटिस्फाई कर सकता है,
ठीक है, ये डेफिनेटली तुम 180 और 360 और ऐड कर दोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, बट द पॉइंट इज कि हमारे एंगल्स, हमारा थीटा कोई ऐसा थोड़ी है कि 360 डिग्रीज, 370 डिग्रीज, 490 डिग्रीज, इतना लार्ज वैल्यूज थोड़ी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब थीटा एंड थीटा प्लस 30 या सप्लीमेंट्री तो सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सो इन दैट केस 2 थीटा इज इक्वल टू 150 एंड थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। ठीक है, और लॉजिक क्या हुआ इसके पीछे का, बिकॉज अल्टीमेटली साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। साइन ऑफ 180 minus theta is also equal to sine of theta. अब 180 minus theta और theta तो supplementary हुआ है ना, that is why कि sin of theta plus 30 if that is equal to sin theta that implies that theta and theta plus 30 degrees are supplementary angles. Okay, तो इसको भी हमने समझ लिया so that अगर कोई शॉर्टर क्वेश्चन आए इस पर बेस तो तुम कर सको या देख के ऑब्जर्व कर सको। और फिर चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे on this session. On the number line, not exactly a geometry question. On the number line, what is the distance of any given number from the double of the same number? Distance of any given number from the double of the same number. ठीक है, डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो डिस्टेंस, पहली चीज तो है डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसी पॉइंट की, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी कैन नॉट बी द आंसर ऑब्वियसली, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। अब डिस्टेंस ऑफ एनी गिवन नंबर फ्रॉम द डबल ऑफ दैट नंबर, अगर हमने नंबर फॉर एग्जाम्पल लिया 1, तो 1 का डिस्टेंस फ्रॉम डबल ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर हमने नंबर n लिया और डबल ऑफ दैट विल बी 2n, तो डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल टू n। और डिस्टेंस क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा तो बेसिकली अगर n लिया है हमने तो मॉड ऑफ n विल बी आर डिस्टेंस। n लिया है तो मॉड ऑफ n हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि n नेगेटिव भी तो हो सकता है। ठीक है, तो n जब नेगेटिव होगा तो 2n विल बी ऑन द अदर साइड, बट डिस्टेंस विल बी स्टिल मॉड ऑफ n। क्लियर है, बट यहां से लग रहा है मॉड ऑफ n है तो ग्रेटर देन 0 होगा, बट क्या हमेशा मॉड ग्रेटर देन 0 होता है? भाई n कैन ऑल्सो बी 0, भाई n को अगर 0 ले लोगे तो 2n भी तो 0 ही होगा, तो डिस्टेंस भी 0 ही हो जाएगा। तो इन दैट केस हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, बिकॉज फॉर दैट नंबर इक्वल टू 0 द डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। फॉर ऑल द नंबर्स विच आर नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। फिर चाहे नंबर नेगेटिव हो तो भी, पॉजिटिव हो तो भी, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी इन दैट केस। ओके, क्लियर है, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी डिस्कस हो सारी बातें समझ में। फिर भी किसी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, और सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।